के स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र का रिमोट कंट्रोल दबाकर वर्चुअल मोड के माध्यम से उपरोक्त पहलों का लोकार्पण करें। साथ ही सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके कर कमलों से इन 4 पहलों का उद्घाटन करने के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। সবাইকে নমস্কার। আজকের এখানে সমবায় সম্মেলন 2024 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান, যাকে আমরা সহকার সে সমৃদ্ধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের মাঝে আজকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী অমিত শাহজি আমাদের মাঝে এসছেন। আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয় এবং আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী আশিস কুমার ভুটানিজি এবং ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী জে কে সিনহাজি, যিনি একটু আগে ওনার স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যা, শীর্ষ সমবায়ের কর্মকর্তাগণ, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত কর্মকর্তাগণ, সমবায় সমিতির বিভিন্ন স্তরের যারা কর্মচারীরা আছেন, সমবায় দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারী তথা মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং আমার সামনে আমাদের ক্যাবিনেটের যারা আমাদের সহকর্মীরা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং যারা বিধায়কগণ আছেন, বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিরা, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন, সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি আমাদেরকে অনেক মার্গদর্শন করবেন। ত্রিপুরাতে এখন জিএসডিপি এখন পর্যন্ত আমাদের 8.9% আমাদের গ্রো করেছে। পার ক্যাপিটা ইনকাম 2024-এ 1,77,773।
যেটা 2023-এ থেকে আমাদের অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে, প্রায় 1,57,364 ছিল। অর্থাৎ যদি 2012-র সাথে আমরা তুলনা করি, প্রায় দ্বিগুণ আমাদের জিএসডিপি ত্রিপুরাতে বেড়েছে। কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন কম্পিটিশনের সমস্ত আমাদের নর্থ ইস্টের যে অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের সাথে আমরা দেখলাম, আমাদের কিন্তু এখন অনেক বেশি আরও পরিশ্রম করতে হবে, এবং বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত, আমাদের জিএসডিপি এই সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের অবশ্যই আমাদের বাড়াতে হবে। সমস্ত নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটের সাথে আমরা একটা হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেটা আমরা করব। এবং আজকের এই যে আয়োজন, সেই আয়োজনের মাধ্যমে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমরা কি আমাদের রূপরেখা এবং আমাদের দিশা নির্দেশিকা সেগুলো সম্পর্কে আজকে আলোচনা হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রীজি থাকার ফলে মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে আমাদের সুযোগ আসবে, যাতে সচেতনতা যাতে আরও বৃদ্ধি হয়, এবং তাতে করে মানুষ সমবায়ের প্রতি কিন্তু মানুষ আকৃষ্ট হবে, এবং সেটা প্রগতির সাথে একটা একাত্ম যে বৃদ্ধি করা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আজকে আমাদের 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে, সেটাকে আরও যাতে বেশি করে আমরা করতে পারি, প্রতিটা রাজ্য যদি চেষ্টা করে তবেই সেটা সম্ভব হবে, তবেই আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কোনো যে মিনিস্ট্রি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে, এবং এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তাভাবনা সেটা অবশ্যই এই যে ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এই সমবায় মন্ত্রকেরও উনি দায়িত্বে আছেন। উনি আসার পরে আমরা একটা ভাইব্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমবায় সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে। আমাদের যে বিভিন্ন যেসব পরিকল্পনা এখন আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আরম্ভ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, যে প্রতিটা জিপি এবং বিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও 741টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি এই দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে, এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয়, এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি, এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস, কোথায় কে কী করছে, তাদের অবস্থা, তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোর পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায় এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা, সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা, নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা সেটা এফপিও সেটা তৈরি করা। জেনেরিক মেডিসিন, এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র সেটাকে উন্নত করা। রপ্তানি ক্ষেত্র, প্রত্যয়িত বীজ, জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার
চিন্তা ভাবনা করেছে। সমবায় সমিতির জন্য আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়, তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তাভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে এখানে আসার জন্য, আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময় ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी। त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, श्री शुक्लचरण नोतिया जी, सहकारिता मंत्री त्रिपुरा सरकार, अगरतला नगर निगम के महापौर श्री दीपक मजमूदार जी, आशीष भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, और आज त्रिपुरा में सहकारिता के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया था, और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को सच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। ये 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके कैंप, पीने के पानी, बीच के रास्ते, टीन के अच्छे पक्के मकान, हर कैंप के अंदर एक स्कूल, हर कैंप के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, हर शरणार्थी बसाहती को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है, और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और आज ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई है। इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी
एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन पर। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका अधिकार मिला। और मैं त्रिपुरा को भी देखता हूं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी दोनों यहां बैठे, मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग शुरू किया। मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए। हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था। और आज वो आंकड़ा 87% को पार कर गया। इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 80% से ज्यादा आबादी को 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने की। उनको कोई खर्चा नहीं उठाना। ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई और इसके साथ में नए नए आयाम रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी करी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम हुई। और मैं आज यहां से कम्युनिस्टों को बताने आया हूं, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया है। इसको कहते हैं सुशासन। और अब हर किसान, हर गरीब, हर मछली पालन करने वाला अपना गरीब त्रिपुरावासी, ये सबके कल्याण के लिए हम यहां पर सहकारिता की भी शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी ने केंद्र के अंदर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है। और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन जाएगा। इससे आनंद सबको है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाना नहीं है। ये प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। समृद्धि हर परिवार तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। सुख हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये करना है तो सहकारिता से के अलावे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है।
देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारिता संस्थाएं हैं। 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल है। अमूल हो, इफको हो, क्रिप्को हो, नाफेड हो, कई सहकारी संस्थाओं ने जन जन को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का काम किया है। बैंकिंग, कृषि विषयक वित्त पोषण, चिकित्सा सहयोग और खाद्य का वितरण, ये लगभग हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता की नींव है। आज यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं त्रिपुरा वासियों को बताने आया हूं कि हमने मोबाइल ग्रामीण मार्ट नाबार्ड के माध्यम से चालू की। 5 जिलों में ये मोबाइल ग्रामीण मार्ट लगभग कई लोगों को नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल, गेहूं का आटा भारत ब्रांड के साथ सस्ते दर में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया है। उनका रुपे कार्ड उनको वहां से तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। धलाई जिले में हड़ुकालू में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है और दलदली लैब्स में आज उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र एनसीसी ऐप के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और एनओसीएल और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में एमओयू, ये 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहाँ पर हुए। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया हूं कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही एनसीओएल आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहां पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है
कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए, और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है, और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है, और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है, 57 में से 41 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, Home and Corporation Ministry. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our Honorable Sir. I now request রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড অয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব।
বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন। চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক।